And we thank the Lord for another wonderful week He has given us. एक आशीषकारी सप्ताह दिया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। We trust you are all doing well and that you are all prospering in God's word. मैं विश्वास रखता हूँ कि आप सभी खैरियत है और परमेश्वर में आप सभी आशीषित हो रहे हो। If you're not prospering, it is not God's fault. It is your fault for not being more in the word. यदि आप आशीष नहीं पा रहे हो तो परमेश्वर की गलती नहीं, वो आपकी गलती है क्योंकि आप वचन में ज्यादा समय नहीं बिता रहे। Because the word says that he who meditates in my word day and night will prosper in everything he does. दिन और रात मेरे वचन को जो मनन करे वो हर चीजों में समृद्धि प्राप्त करेगा, ऐसा वचन कहता है। But even if you're not prospering right now, because you are in God's word, even this time is a beneficial time for you. यदि आप परमेश्वर की समय में अभी समय बिता रहे हो वचन में, तो वो भी आपके लिए एक आशीषित समय है। Even if you don't see the prosperity, even if you don't see things working out for you, it is still a time that God is using to prosper you because you are in His Word. यदि आप आशीष नहीं देख रहे हो, लेकिन यही समय है परमेश्वर आपको उपयोग में ला रहा है, आपके उस आशीषों के लिए आपको सृजा रहा है उस हिसाब से, ताकि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषित हो जाए। This is the beauty of the Word of God. यही परमेश्वर के वचन की सुंदरता है। This is the power of the Word of God. यही परमेश्वर के वचन का ताकत है। And as we have been declaring the promises of God according to the Bible, we are going to see changes in our lives. हम वचन के हिसाब से जैसे हम घोषणा कर रहे हैं या फिर हम वचन के बारे में कह रहे हैं, हम हमारे जीवन में उसकी आशीषों को देखने वाले हैं। And we have been focusing for the past few weeks on how the Bible says that women are God's divine help for man. और कुछ दिनों से हम जैसे वचन में मनन करते हुए आ रहे हैं, स्त्री कैसे एक दिव्य सहायक है पुरुषों के लिए। This is what the Word of God says. यही वचन कहता है। This is not based on what you think or what you believe. ये आप क्या सोचते हो उसके आधार पर नहीं, या फिर क्या आपका सोचा है आपने। Because the Word of God says that His Word will last forever. क्योंकि वचन कहता है कि उसका वचन अनंत काल तक के लिए रहेगा। You see, your thoughts and my thoughts will die with us. आपकी सोच और मेरी सोच हमारे साथ मृत्यु हो जाएगी। Maybe we write it down somewhere, but it will still die with us, and after a few times, those books will be burnt. और शायद हम कहीं लिखे दिए जाओगे, लेकिन हमारे समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। But the Word of God, it says it will last forever. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अनंत काल तक के लिए रहा जाएगा। And this is something that is so wonderful and so beautiful, because then I know that I can put my 100% trust in the Word of God. फिर मुझे पता है कि मेरे वचन पर मैं पूरी तरह से 100% अपने मन को लगा सकता हूँ, क्योंकि वो अनंत काल के लिए है। The church I go to right now will stop to exist someday. मैं जिस कलीसिया में जाता हूँ शायद वो कभी बंद हो जाएगा कुछ दिनों के लिए, सालों के बाद। The pastor will eventually die. पास्टर की मृत्यु हो जाएगी धीरे धीरे। The gurus will all die. या फिर जो भी गुरु है उनकी मृत्यु हो जाएगी। The statues will all be broken someday. मूर्तियां टूट जाएगी किस दिन। But the Word of God and His promises will last forever. परमेश्वर का वचन और उसका वायदा हमेशा के लिए रहेगा। That's why, as we are proclaiming these promises based on Proverbs chapter 31, I want you to keep this in mind, that it's going to last forever. नीति वचन 31 के आधार पर जैसे हम ये वचन को घोषित कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप आपके मन में ये रखें कि ये हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए रह जाने वाला। In other words, because this is the Word of God, this is the truth that you have to adjust your mind to. और क्योंकि ये सच्चाई है और ये परमेश्वर का वचन है, आपके सोच विचार और आपके मन को इस हिसाब से आपको बदलना होगा।
Now, I am focusing on Proverbs 31 as an exercise that we can then use for the rest of the Bible. मैं नीति वचन 31वां अध्याय एक व्यायाम के तौर पर उपयोग में ला रहा हूं ताकि दूसरे अध्यायों के द्वारा हम उससे आशीषित पा सके Because if you look at this from the outside and you start reading about what the Bible says about the woman, most of us will laugh. क्योंकि आप यदि बाहरी दृष्टिकोण से इसे देखो और अधिक से अधिक लोग स्त्रियों के बारे में जो कहते हैं हम उसको सोचकर या फिर सुनकर पढ़कर हंसेंगे Because when I make the men repeat these promises about their wives, most of them don't see it and don't believe it. क्योंकि जब मैं पुरुषों से ये कहलवाता हूँ या फिर बोलवाता हूँ तो अधिक से अधिक पुरुष शायद ये देखते नहीं या फिर समझ नहीं पाते And when I make the women repeat what the Bible says about them as a wife or a husband, they themselves many times don't believe it. और मैं स्त्रियों से जब ये दोहराता हूँ कि उनको पतियों के दौर पे उनको क्या क्या परमेश्वर ने आशीषें दी है शायद उनको तभी समझ में नहीं आता होगा और वो विश्वास नहीं करते होंगे Now you might be asking me, well, I am not a wife and I'm not a husband. तो आप कभी शायद सोचते होंगे मैं पति नहीं हूँ और पत्नी नहीं हूँ You might say, well, I am just a mother who is a mother-in-law. और शायद हम बोलेंगे मैं एक माता हूँ या फिर एक सासू माँ हूँ And you might say, well, I'm just a child. I only have parents. और शायद आप बोलोगे मैं तो एक बच्चा हूँ मेरे माता पिता है Well, then you can take these verses and you can change them in a way that you can apply them to your life and your confessions. और यदि आपकी वो परिस्थिति है तो आप इस वचन को लेकर अपने परिस्थिति के हिसाब से उसे बदल कर वो वचन को ग्रहण कर सकते हो आप For example, the mother-in-law. दृष्टांत के तौर पर सासू माएं You can say when the part of the man is being spoken, you can say, well, my son thinks this of my daughter-in-law. तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि मेरा बेटा मेरी बहू के बारे में ऐसा सोचता है And you can say, my daughter-in-law is this kind of person. या फिर आप ऐसे बोल सकते हो मेरी बहू ऐसी व्यक्ति है This might not be the reality right now. ये सच्चा अभी सच्चे में ऐसा नहीं होता होगा शायद It will be very hard for you to even try and confess it. आपको बहुत कठिन पड़ता होगा कि आपके मुंह से आप उसे बोले भी But if the Bible says that this is what God has spoken about the wife, it is possible. वचन कहता है परमेश्वर ने स्त्री के बारे में पत्नी के बारे में ये बोला है मतलब ये हो सकता है If you're a child, then you can say, my father thinks this way about my mother. यदि आप बच्चे हो तो आप बोल सकते हो कि मेरे पिता मेरी माता के बारे में ऐसे सोचते हैं And you can say, my mother is this kind of a person. और आप ऐसे बोल सकते हो कि मेरी माता ऐसे एक स्त्री है So you can take all these verses and you can make them personal towards your life and your situation. और ये सब वाक्यों को आप उठाकर आपकी परिस्थिति या फिर आपके सोच के हिसाब से आप उसे बदल सकते हो And by you changing your mind towards what the Bible says, you will start to believe what the Bible says and things will start to change. तो आप इसे ग्रहण कर कर समझ कर आप इसे वचन के हिसाब से दोहराओगे तो आप विश्वास करोगे कि वचन क्या कहता है See, this morning we sang the song, You Are Here Working in This Place. आज सुबह हमने ये सब गीत गाया कि आप यहाँ हो और आप इस परिस्थिति में कार्य कर रहे हो Means we are not focusing on actually feeling God in a place where we are, but we know He is there and He's working in the background. हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हम ऐसा कर रहे हैं सोच रहे हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ है हम लेकिन परंतु हम ऐसा बोल रहे हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति है यहाँ और वो कार्य कर रहे हैं By believing on that promise that God is there where we are right now, joined together in the name of Jesus Christ, we are acting by faith. और ऐसा विश्वास करने के द्वारा हम ऐसा घोषित कर रहे हैं कि पवित्र परमेश्वर की आत्मा वहां है और वो विश्वास के हिसाब से वो कार्य कर रहा है
See, the only thing God wants from you is your faith. सिर्फ यही परमेश्वर आपसे चाहता है कि आपका विश्वास। The moment your faith is placed in the Word and in Jesus Christ, everything will start to change. जिस क्षण आप परमेश्वर में और परमेश्वर के वचन में निवित रहोगे, उस क्षण से आपका जीवन बदलने लगता है। The Bible says that the woman is God's divine help for man. और वचन कहता है स्त्री पुरुष के लिए एक दिव्य सहायक है। The moment you put your faith in that promise, that woman will become the divine help you need as a man. जिस क्षण से आप उसे विश्वास करोगे, वो क्षण से वो स्त्री आपकी एक दिव्य सहायक बन जाएगी। And woman, the moment you believe what God has spoken over you, you will become that divine help for your husband. और स्त्रियां, जब आप उसे विश्वास करोगे, उस क्षण से परमेश्वर आपको दिव्य सहायक आपके पति के लिए बनाएगा। Now, I have been repeating myself for the past 6-7 weeks with the same exact topic about believing what the word says. 6-7 हफ्ते से मैं यही बात को दोहरा रहा हूँ, इस बात पर विश्वास करते हुए कहते जा रहा हूँ। Why? Because I am seeing that most people are not reading the word and spending time with the word and putting their faith in the word. अधिक से लोग वचन नहीं पढ़ते, वचन मनन करने के लिए, पढ़ने के लिए समय नहीं बिताते और अपना विश्वास और नींव वचन में नहीं डालते। They are still stuck in what they are seeing and what the world is telling them. वो वही अटके हुए हैं कि आप क्या देख रहे हैं और आपने क्या सीखते हुए या फिर सीखे आए हैं। The problems in their life are bigger than the God they believe in. उनके जीवन की समस्याएं उनके विश्वास करने वाले परमेश्वर से बड़ा है। Sickness has no authority over you. बीमारियों को आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। Poverty has no authority over you. गरीबी को आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। You losing your blessings is not God's plan for you. आपको आपकी आशीषें खोना परमेश्वर के हित के हिसाब से नहीं है। The sin you desire right now is not your reality. जो पाप की आप लालसा या फिर आशा करते हो, वो आपकी सच्चाई नहीं है। The lies that you are hearing from Satan are not the truth God has spoken over you. जो झूठी बातें आप शैतान से सुनते हुए आ रहे हो, वो आपकी जीवन की सच्चाई नहीं है। Jesus has promised a life that we will enjoy every single thing we have. परमेश्वर यीशु मसीह ने ऐसा एक जीवन हमारे लिए दिया है, तो हर एक चीजों का हम आनंद ले सके। Now, I'm repeating these things on purpose 10 times. मैं बार-बार 10 बार इसे दोहराने में मेरे उद्देश्य है। Because many of us are just reciting verses and reading verses, but not really walking in those promises. क्योंकि हम में से कई लोग उसे दोहराते हैं, बोलते हैं, लेकिन उसमें हम हमारा जीवन नहीं बिताते। See, you don't need to understand or memorize 100 verses. आपको इसे छांटना नहीं है या फिर मनन नहीं करना है या फिर बिना देखे सीखना नहीं है 100%। You have to just take the verses that God is giving you today and start walking in them. आप उस वाक्य को लेना है जो परमेश्वर आपको दे रहा है और आपको सिर्फ उस पे चलते जाना है। You have to put your faith in the verse, in the promise God has given you for today. आपको उस वाक्य में अपना विश्वास, अपना भरोसा डालना है जो आप आज सुनते हुए आ रहे हो, पढ़ते हुए आ रहे हो। Once you start walking in those promises, everything else around you will start to submit to that promise. आप जिस इस वादों को पढ़ते हुए आओगे, आपकी पूरी परिस्थिति, आपके पूरे इर्द गिर्द हर चीजें उस परिस्थितियों पे विश्वास कर मेल जुलाव करते हुए आएंगे। So I am wanting to make sure that as we go through these series and we declare these promises, that we come to understand that as we walk in them, things will transform around us. जैसे हम इसे घोषित कर रहे हैं,
जैसे हम इसे बोल रहे हैं, जैसे हम विश्वास करते जाओगे, हमारी परिस्थितियां, हमारा जीवन वो हिसाब से, इस वचन के हिसाब से विधान करते हुए आ जाएगा। Now, please do not misunderstand me. I'm not talking about positive confession. मुझे गलत मत समझिए, क्योंकि मैं एक पॉजिटिव सोच, एक अच्छे सोच के बारे में नहीं बता रहा यहाँ। Many people are preaching right now, just speak positive, speak good, and good will happen. कई लोग ऐसे प्रचार करते हैं कि अच्छा बोलो, पॉजिटिव बोलो और पॉजिटिव आपके जीवन में होगा। This is not the word of God. ये परमेश्वर का वचन नहीं है। The word of God does not say that if you speak positive, you will get positive. परमेश्वर का वचन नहीं कहता कि आप सही अच्छा बोलो तो आपके जीवन में अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं कहता। The word of God says that if you speak the word of God and his promises, you will get those promises. परमेश्वर का वचन कहता है, आप परमेश्वर के वचन की वाणियों को घोषित करो और उस हिसाब से जियो, तो उसकी आशीषों को आप प्राप्त कर पाओगे। The word of God says that if you love God above all things, then everything will work out for your good. परमेश्वर का वचन कहता है कि अब हर एक चीजों से अधिक परमेश्वर को प्रेम करो, तो आपके इर्द गिर्द होने वाले हर एक चीज आपके लिए कार्य करेंगे। Now, you can spend all day speaking the promises of God. आप पूरा दिन परमेश्वर के वायदों के बारे में बात कर सकते हो, But if you're not walking in those promises and walking close to Jesus Christ, they are of no use. परंतु आप इस वाक्यों में, वायदों में अपना जीवन नहीं बिताओ या फिर जीवन का चाल चलन नहीं करो, तो उससे कोई फर्क नहीं, उससे कोई बदलाव नहीं आएगा आपके जीवन में। Because you have to be first someone that is walking with God, fearing God, and then God will start to transform you. क्योंकि आपको ऐसा होना पड़ेगा जो परमेश्वर के लिए सुन रहा है, परमेश्वर के साथ चल रहा है, तब जाके परमेश्वर आपके जीवन में विधान लाना शुरू करेगा। See, in John chapter 14, there's a very, very important verse there, which I make people read. John chapter 14. Let's go there. I believe it's verse 6, if I'm not mistaken. यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 6वां वाक्य है, जो मैं हमेशा लोगों से कहलवाता हूँ या फिर दोहराता हूँ पढ़ते हुए। Let me find over here in the Bible. I've changed the app on the Bible, so I'm having a hard time looking for the verses. Hold on a minute. Yeah. So John chapter 14, the New Testament. नए नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय। Let's go to verse 4, 5, and 6. It says, "And whether I go, ye know, and the way you know." Thomas said unto him, "Lord, we know not whither you go, and how can we know the way?" Jesus said to him, "I am the way, I am the truth, and I am the life, and no one comes to the Father except but by me." यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 4 से लेकर 6वां वाक्य तक। जहां मैं जाता हूं, तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसा जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मैं Amen. Amen. So here we are seeing that Jesus Christ himself is giving us a wonderful, wonderful teaching. यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह खुद ही हमें एक अद्भुत आश्चर्यकारी सीख सिखा रहे हैं। First, he is saying that I'm going to be in heaven. पहले वो कहते हैं कि मैं स्वर्ग में जाने वाला हूं। Means he's going to be with the Father united as one. इसका मतलब उस स्वर्ग में जाकर पिता के साथ एक समान रहने वाले हैं। And he's saying that you know the way. और वो कहते हैं कि आप मार्ग जानते हो, You know where I'm going. और आप जानते हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ।
And then Thomas asks him, I have no idea what you're talking about. थॉमस उससे कहता है कि मुझे कुछ पता नहीं कि आप क्या कह रहे हो। I don't understand what you mean by that I am going to be with the Father, that I know the way. और मुझे ये कह रहे हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप कह रहे हो कि मैं ही मार्ग हूँ और मैं ही सच्चाई हूँ और मेरे द्वारा आप पिता के पास जा सकते हो। So here, Jesus repeats it and he says, this is the truth. I am the way. और यही सच्चाई है, मैं ही मार्ग हूँ। The way to heaven. स्वर्ग के लिए मार्ग मैं हूँ। I am the truth. मैं ही सच्चाई हूँ। I am the only truth that is, I am the only truth that will get you to heaven. और मैं ही वो सच्चाई का द्वार हूँ जिसके द्वारा आप स्वर्ग में पहुंच सकते हो। And I am the life. और मैं ही जीवन हूँ। I am the life that will give you eternal life. मैं ही वो जीवन हूँ जो तुम्हें अनंत काल का जीवन दे सकता हूँ। So Jesus is saying, you have to walk in the way I walk in. और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें उस मार्ग पर चलना होगा जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूँ। You have to believe the truths that I am speaking. और तुम्हें उस सच्चाई को बोलना होगा मैं जिसकी वाणी मैं बता रहा हूँ। And you have to live the life that I am living. और आपको उस जीवन जीना होगा जिस जीवन मैं जी रहा हूँ। Then you will see the way. और तभी आप मार्ग को देखोगे। Then you will know the truth. तभी आप सच्चाई को जानोगे। And then you will live the abundant life. और तभी आप एक आशीषकारी जीवन और भरपूरी का जीवन बिता पाओगे। See, we have to first forget everything we think we know so far in life. हमें वो सब चीजों को भूलना है जिसे हमें लगता है कि अब तक हमें कुछ पता है। Husbands, you have to forget all the things you have seen about your wife that are wrong. पतियों को सब भूलना होगा जो पत्नियों के बारे में उन्हें लगता है कि गलत है। Wives, you have to forget all the mistakes you have made in life and all the things that anyone has said wrong about you. पत्नियों को वो सब आपको भूलना होगा जो आपको गलत सब ठहराए हैं या फिर जो गलत आपने अपने बारे में सुना है। When you blindly believe completely 100% what God has spoken, then you will start to enjoy those promises. और आप 100% परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर की वाणी जो आपके बारे में कहते हैं उससे विश्वास करोगे तो तब जाके आपके जीवन में बदलाव आएगा। When you believe 100% that Jesus Christ is the way, you will start to walk in that way. जब आप विश्वास करोगे कि यीशु मसीह ही मार्ग है तब उस मार्ग पर आप चलोगे। Only when you believe that you're walking in the way, then you will be able to show others that same way. जब उस मार्ग पर हम चलोगे तब दूसरों को हम उस मार्ग को बता पाएंगे। You have to believe 100% that Jesus Christ is the only truth. आपको 100% विश्वास करना होगा कि यीशु मसीह ही सच्चाई है। And that truth will set you free. और वो सच्चाई आपको छुड़ा देगी या फिर मोक्ष कर देगी। Once you start walking in that freedom, you can share that truth to others who will also be set free. जब आप छुड़ा दिए जाओगे आप उस छुटकारे में चलोगे और आपकी उसके द्वारा आप दूसरों को भी मदद कर पाओगे जिसके आपके द्वारा उसे भी छुटकारा मिल जाए। And when you start walking the way Jesus walked, in the way that the life that he lived, you will have the abundance of life that Jesus promises. और जिस मार्ग पर आप चलोगे वही मार्ग पर यीशु ने जिस मार्ग पर चला है आपको जीवन की भरपूरी का मार्ग आप भी चल पाओगे। Now, did Jesus have horses and chariots and cars? यीशु के पास घोड़े, रथ और कार। He didn't have all these things in abundance. उनके पास ये सब चीजें भरपूरी में नहीं थी। But whatever he needed was provided for him at the exact moment he needed it. लेकिन उन्हें वो सब कुछ मिला उस क्षण में जो उन्हें चाहिए था, उन्हें वो सब कुछ मिला। When he needed food, food was brought to him. जब खाने की जरूरत थी, खाना उनके पास लेकर आया गया था। When he had to pay taxes, the money for the taxes was given to him. जब चुंगी भरने का समय आया तो चुंगी का पैसा उनके पास आ गया। This is the abundant life that Jesus is talking about.
यही भरपूरी का जीवन है जो यीशु मसीह बात कर रहा है। In other words, the moment you need it, you will have it because now you are walking with the power of the eternal life inside of you. और आपको तभी वो मिलेगा तब जबकि आपको जीवन की भरपूरी आपके जीवन में मिलेगी, Because you are now focused on the eternal life. क्योंकि अभी आप अनंत काल के जीवन में ध्यान बटा रहे हो। Jesus is the way, यीशु मसीह जीवन है, the truth, सच्चाई है and the life. और जीवन है। There is no other way for you to have the fullness of eternity. उसके अलावा आपके जीवन में कोई और अनंत काल के जीवन के लिए मार्ग नहीं है। So these promises in Proverbs 31, which we are reading over and over again about the woman, these are the foundation if you want to change your family, your husband and wife relationship. ये नीति वचन में हमने जो पढ़ा वो ही नींव है आशीषें पाने के लिए और स्त्रियों को अपने जीवन में आशीष प्राप्त करने के लिए। Now, I'm going very slowly with these teachings on purpose. मैं जानबूझकर बहुत ही धीमेपन से मैं इस सीख के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, Because as we read these verses, we also take the time and we confess them. जैसे हम इसे पढ़ते हैं और हम इसे अपने मुंह से बोलते जा रहे हैं, We make our ears hear it, हमारे काने इसे सुन रही है and our faith increases in God's word. और हमारा विश्वास मसीह में बढ़ते जाता है। Then the next time we see our wife do something wrong, और अगली बार जब हम अपनी पत्नी को देखेंगे कुछ गलत करते हुए, we will believe what the word says and not what we are seeing. हम वही बोलेंगे जो वचन कहता है, ना कि जो हम देखते हैं। And the next time you wives are afraid of taking a step and doing something, और जब पत्नियां एक कदम उठाकर कुछ करने के लिए डरते हैं तभी, because of the failures of the past, क्योंकि अपने बीते हुए जीवन की कमियों की वजह से, पराजय की वजह से, or because what your husband might say, या फिर आपका पति क्या कहेगा, you will believe what the word says and you will take that step of faith. आप वही विश्वास करोगे क्योंकि वचन कहता है और आप विश्वास का कदम रखोगे। So we will go through some of these today once again, and I want you to understand how hard is it for you to actually confess these things. और हम उसमें से कुछ आज जाएंगे और ऐसा ध्यान में रखेंगे कितना मुश्किल है अपने जीवों से इस बातों को कहना। The harder it is, the less faith you have in the word of God. जितना कठिन है उतना कम विश्वास है आपको वचन में। So as we read these verses now again, as we read these promises again and confess them, I want you to truly surrender to what you're saying and not what you are seeing. और जैसे हम इसे बोलते जा रहे हैं, अपने आप को समर्पण कीजिए जिसे हम बोल रहे हैं, ना कि देखने के द्वारा। So let me put this on the screen so we go through them one by one. तो मैं स्क्रीन पे डालना चाहता हूं ताकि एक एक करके हम जाए इस पे। So I will repeat them once and then brother you translate it into Hindi. Okay. So first let's start with the man, and the man has to say this to his wife. हम पतियों से शुरू करेंगे और पतियों को इसे बोलना है। And then the woman has to say something else to the husband. और स्त्रियों को ये बोलना है अपने पति के लिए। Now, like I said, if you are a mother-in-law, you speak this about your son, and then speak this, the woman part, about the daughter-in-law. यदि आप एक सासू माँ हो तो आप अपने बेटे के बारे में ये कहिए, और स्त्री के भाग आए तो अपने बहू के लिए ये कहिए। So the man, you have to say, "You are my divine help from God." और पुरुषों आपको ये कहना है कि तुम मेरी दिव्य सहायक हो परमेश्वर की ओर से। Woman, you have to say, "I am your divine help from God." और स्त्रियों को ये कहना है कि मैं तुम्हारी दिव्य सहायक हूँ परमेश्वर के द्वारा। Go to point 1. The man says now, you are virtuous and a crown I want to show off.
you are priceless and full of resources. पुरुष ये कहेंगे, तुम एक खरी और एक मुकुट हो जो मैं सबको दिखाना चाहता हूं, और तुम बहुमूल्य हो और पूरी स्रोत से भरी हो। Now the woman will say to the husband, I am स्त्रियां like a crown you want to display and show off. I am priceless to you and full of resources. स्त्रियां ये कहेगी कि मैं एक मुकुट हूँ जो तुम्हें सबको दर्शाना है, और मैं बहुमूल्य हूँ और पूरे स्रोतों के भरी हुई हूँ। Now, these confessions are based on Proverbs chapter 31, verse 10 till the end. और ये जो भी वाणियां हम बोल रहे हैं, नीति वचन 31 के 1 से लेकर अंत तक के वाक्यों के आधार पर है। Next week, I will put on the screen also the verses it is based on. अगला वाक्य भी हम पढ़ेंगे जो वाक्यों पर आधारित है। So, point number 2 now. Men, you say, I have full confidence in all your decisions, therefore, I will lack nothing good. पुरुष कहेंगे, पॉइंट दूसरा, मैं तुम पे पूरा भरोसा करता हूं, इसके लिए मैं कुछ भी चीजों में कमी नहीं रहूंगा, और अच्छे चीजों के लिए। Then the woman will say now to the husband, you have full confidence in all my decisions, therefore you will lack nothing good. फिर स्त्रियां कहेगी, आपको मेरे में पूरा विश्वास है हर निर्णय में जो लेती हूं, इसके लिए आप कोई भली चीजों में कमी नहीं पाएंगे। Point 3, man, you bring me good and never evil with your words and actions. पुरुष, तुम मुझे हमेशा भले और अच्छे चीजें लाते हो, और कभी दोष भरी बातें या फिर कार्यों को नहीं करोगे। Woman to the husband, my words and actions always bring you good and never evil. मेरी बात, मेरी वाणियां और मेरे क्रियाएं हमेशा तुम्हें अच्छा ही लाएगा, ना कि कोई कुकर्मी बातें। Point 4, man, you are hardworking and enjoy working with your hands. You are not lazy or a procrastinator, nor do you wait to be told what to do. पुरुष कहेंगे कि तुम मेहनती हो और तुम अपने हाथों से मेहनत करने के लिए इच्छा रखती हो, और तुम कभी आलसी नहीं हो, या फिर सोच सोच कर उमड़ के रहने वाली नहीं, या फिर कभी तुमको कहना नहीं पड़ेगा कि तुम्हें क्या करना है। Now, the woman to the husband, I am hardworking and enjoy working with my hands. I am not lazy, not a procrastinator, nor do I wait to be told what to do. और स्त्रियां अपने पतियों से कहेंगे, मैं मेहनती हूँ और मैं मेहनत अपने हाथों से करना अच्छा लगता है, मैं कभी आलसी नहीं हूँ, या फिर अधिक सोचने वाली नहीं हूँ, या फिर मुझे वाट जोते नहीं रहना है कि बताने के लिए मुझे क्या कार्य करना है। Now, as we are doing these, are you having a hard time confessing this about your wife? जैसे हम ये बोलते जा रहे हैं, क्या हमें आपको तकलीफ हो रहा है बताते हुए कि आपकी पत्नी के बारे में ये ऐसा आप कह रहे हो? And you wives, are you having a hard time to speak this about yourself? या फिर पत्नियां, आपको एक कठिन समय हो रहा है कि आपकी पतियों की ओर ऐसा बोलने के लिए? If this is happening, this is okay. यदि हो रहा है तकलीफ तो ठीक है, कोई बात नहीं, Because none of us are perfect. क्योंकि हम में से कोई 100% नहीं है। The women are not perfect in what they do, स्त्रियां पूरे 100% नहीं है जो उसमें कार्यों में वो करते हैं, and the men are not perfect in what they think about their wives. पुरुष सही नहीं होते हमेशा जो उनकी पत्नी के बारे में वो सोचते हैं। But by doing these practices, the men will become men that encourage their wives. ये करते हुए पुरुष अपनी पत्नियों को प्रोत्साहित करेंगे एक अच्छी पत्नी बनने के लिए। The men will speak the truth about God regarding their wives. और पतियां सच्ची बातें करेंगे परमेश्वर की और अपनी पत्नी के बारे में। And the woman will start to believe what the word has spoken about them.
और स्त्रियां विश्वास करने लगेंगी कि उनके बारे में क्या बातें की गई है। Now, once you speak the truth, the lies have to disappear. जब आप सच्चाई बात करोगे तो झूठी चीजें गायब हो जानी शुरू हो जाएगी। Once you start speaking the promises of God, the failures in your life will have to change. जब आप सच्चाई बात करने लगोगे तो आपके जीवन की पराजय बदलने लगेगी। Once you start to believe what the Word of God says, you will start to act with the promises in the Word. आप विश्वास करने लगोगे कि परमेश्वर जो कर रहा है और वायदों पे, तो आप उस हिसाब से अपने जीवन के कार्यों को करने लगोगे। So you can do nothing in life if you don't first have faith that you can do it. आप आपके जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे जब तक आपको उस विश्वास नहीं होगा कि आपके जीवन में आप ये कर पाओगे। Now, even if you don't believe that you can do it, you have to believe that the Word of God will allow you, will strengthen you, or will make you capable of doing it. आमीन। यदि आप इस पे विश्वास नहीं, आपके जीवन में विश्वास नहीं हो, लेकिन वचन आप पढ़ते हो, मनन करते हो, तो पवित्र आत्मा और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा ताकि आपके जीवन में उसकी सफलता और पूर्ति हो जाए। You see, everything you do in life is not 100% based on what you can do. हर चीज से आपके जीवन में जो आप करते हो 100% होना जरूरी नहीं कि जो आप करते हो पूरा हो जाए। In other words, everything you do in life, it is possible because God does it through you. आपके जीवन में हर चीज का करना 100% ये नहीं होना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर वो आपके द्वारा करवा रहा है। If you don't steal, it's not because you are a person who does not want to steal. आप चोरी इसीलिए कर रहे हो क्योंकि इसीलिए नहीं क्योंकि आप उस चोरी करना नहीं चाहते। If you are not lying, it's not because you are someone who does not want to lie. आप झूठ नहीं बोल रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई ऐसे व्यक्ति नहीं हो जिसे झूठ नहीं बोलना है। If you do not steal, it's because God is changing your heart so you do not steal. यदि आप चोरी नहीं करते, इसका मतलब परमेश्वर आपके हृदय में विज्ञान लाता है ताकि आप चोरी ना करें। If you are not speaking lies, it's because God is making you speak the truth. यदि आप झूठ नहीं बोलते, इसका मतलब ये है क्योंकि परमेश्वर आपसे झूठ नहीं बुलवाता। You see, you cannot please God unless God makes you become someone who pleases Him. आप परमेश्वर को प्रसन्नित नहीं कर पाओगे जब तक आप परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके क्रिया के द्वारा वो प्रसन्नित हो जाए। That's why it is so important for us to read and reread the Word on a constant basis. इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इस वचन को पढ़े, बार बार पढ़े और हृदय में मनन करते रहें। Because then our hearts and our minds will be molded according to God's promises. क्योंकि आपका हृदय और आपका मन वचन के हिसाब से बदलता हुआ जाना शुरू करेगा। And once you start to change your mind towards the promises in the Bible, then and only then will your life start to change according to the Bible. तो आपका वचन के हिसाब से आपके सोच विचार में विज्ञान आएगा, तब जाकर वचन के हिसाब से आपके विचारों में बदलाव आने लगेगा। This is what we call the power of faith. यही हम कहते हैं विश्वास की ताकत को। Because once you believe the word of God, your faith will change everything around you. क्योंकि एक बार आप परमेश्वर के वचन को विश्वास करोगे तो आपके जीवन में हर चीज बदलाव हो जाएगा। Let's continue with the point number 5. और 5वें पॉइंट से हम आगे बढ़ते जाएंगे। Man says to the wife, you prepare all things ahead of time, go to far places, go to far places on your own to find the best prices, and you stay within a budget. पुरुष अपने पत्नी से कहेंगे कि तुम हर चीजों को समय से पहले तैयार कर देती हो और उस दूर दूर के जगहों में जाती हो ताकि अच्छे दामों के चीजों को प्राप्त कर सके और अपने पैसे के सीमा में उसे खरीद कर लेके आए। Now the woman will say to the husband,
I prepare things ahead of time. I go to far off places on my own to find the best prices, and I stay within a budget. स्त्रियां अपने पति से कहेंगे कि मैं समय से पहले कार्यों को तैयार करती हूँ और मैं दूर दूर जगहों पे खुद से जाती हूँ ताकि अच्छे सस्ते दामों में चीजों को खरीद कर सीमित पैसे में खरीद पाए। Now, point 6. अच्छा, तो अ पॉइंट Now, men will say to the wives, you have good time management skills. You rise up early before everyone else and don't completely depend on servants to take care of us. पुरुष अपने स्त्री से ये भी कहेंगे कि तुम्हें समय के कार्य में कार्य करने का प्राप्ति है और सवेरे उठती हो और सवेरे सबसे पहले उठकर कार्यों को करती हो और नौकरों पर कार्य करने के लिए निर्भर नहीं रहती। Then the wife will tell to the husband, I have good time management skills. I rise up early before everyone else and don't completely depend on servants to take care of my family. और स्त्री अपने पति से कहेंगी, मेरे पास अच्छा समय का कार्य करने की प्राप्ति है, सवेरे उठती हूँ सबसे पहले और अपने आप पर निर्भर रहकर कार्यों को करती हूँ अपने परिवार का देखभाल करने के लिए, ना कि नौकरों के ऊपर निर्भर करते हुए। Now, I want to remind you that if you are a mother-in-law, you have to speak these things over your daughter-in-law. यदि आप एक सासू माँ हो तो अपने बहुओं के ऊपर इस वाणियों को, वचनों को आपको घोषित करना है। Now, this might be hard, ये शायद तकलीफ देता होगा बोलने के लिए, but this is what the Word of God says about your daughter-in-law. लेकिन ये ही आपके बहुओं के बारे में वचन कहता है। Now, if you're a child, you have to say these things about your parents. यदि आप बच्चे हो तो आपके पतियों, माता पिताओं के बारे में आपको ये बोलना है। You might always hear your father always insulting or always screaming at your mother. शायद आप एक बच्चे हो तो आपको देखते होंगे कि एक पिता कैसे अपनी माता से बातें करते हैं, बुराइयां करते हैं और कैसे बुरी बातें करते हैं। But you have to speak that your father thinks these good things about your mother. लेकिन हमें ऐसा प्रार्थना करना है और कहना है कि ऐसी भली बातें मेरा पिता मेरी माता के बारे में कहे। You have to cancel the wrong words that are being spoken. हमें हर वो गलत शब्दों को कैंसल करना है जो बातें की गई है। Let's continue point number 7. 7वें पॉइंट से आगे बढ़ेंगे। Men tell your wives, you are wise with finances and resourceful, not an overspender. You know how and where to invest for our future. पतिया अपनी पत्नियों से कहेगी कि तुम बुद्धिमान हो पैसों के मामले में और स्रोत से कार्य चलाती हो, तुम अधिक खर्चा नहीं करती और तुम्हें पता है कि कब, कहाँ और भविष्य में कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है। Now, women, you will tell your husbands, I am wise with finances and resourceful, not an overspender. I know how and where to invest for our future. पत्नी अपने पति से कहेगी कि मैं बुद्धिशाली हूँ पैसों के मामले में और विवेक के साथ कार्य करती हूँ, अधिक खर्चा नहीं करती और मुझे पता है कि कब, कहाँ और किस विषयों में जीवन में आगे बढ़कर पैसा इन्वेस्ट करना है। Verse point 8, men will tell their wives, 8वां पॉइंट पति अपने पत्नी से कहेंगी, you are focused and serious about your business plans. You are always confident and positive to have a good profit. You don't love to sleep. पतिया अपनी पत्नियों से कहेगी कि तुम ध्यानपूर्वक हो और तुम इस मामले में गंभीर हो अपने बिजनेस के विषय में और आप हमेशा आत्मनिर्भर और सही दृष्टिकोण पे चीजों को और अच्छे मुनाफे में आप चाहते हो और आप अधिक सोना पसंद नहीं करते। Now, women will tell the husbands, I am serious and focused about the business I run and confident that it will bring good profit. I never choose sleep over working hard to finish up a task. स्त्रियां अपने पति से कहेगी, मैं गंभीर और सोच विषय में कारोबार चाहती हूँ और मैं आत्मनिर्भर हूँ
कि मैं अच्छा मुनाफा लाऊंगी और मैं कभी नींद को अपने मेहनत से अधिक नहीं लाऊंगी और मैं अपने कार्य को पूरा करूंगी। And now, last one, point 9 for today. और नवा वाक्य अंतिम आज के लिए, The husband will tell the wife, "You are financially independent from me. Your side business and creative mind helps us in difficult times." पुरुष अपने पत्नियों से कहोगे तो सांपत्तिक विषय में आत्मनिर्भर हो और तुम्हारे अपने साइड के चलने वाले कारोबार से और तुम्हारे विस्तार सोच में से हमें कठिनाई के समय आगे निकल पाओगे। Now the wife will tell the husband, "I don't depend completely on what you can provide for me. My side business and creative mind helps us face difficult times." पत्नी अपने पति से कहेगी कि मैं आत्मनिर्भर हूँ या फिर तुम्हारे ऊपर पूर्ण रीति से निर्भर नहीं हूँ, अपने चलाने वाले कारोबार में से और अपने सोच विस्तृत मन से मैं कठिनाई के समय में बाहर आ सकती हूँ। आमीन। How did you feel as you said these things? कैसा लगा आपको ये चीजों को बोलते हुए? Now, as this online church is growing, we're having more and more people join us as a community who are constantly joining every week. हम इस ऑनलाइन चर्च के द्वारा अधिक लोग हमारे इस कम्युनिटी में ज्वाइन हो रहे हैं हर एक दिन। So that's why I'm taking the time to do these exercises with those of you who are constantly joining with us. और ये एक्सरसाइजेस मैं उनके लिए कर रहा हूँ जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं। So I encourage you to stay connected with us as we go every week deeper and deeper into these promises. और मैं प्रार्थना करता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि हमारे साथ बने रहे, आगे सुनते रहे, जितना हम इसकी गहराई में जाते जा रहे हैं। Once I am done with all these confessions, I will post an article on the website so you can practice these all the time. मैं जब ये खत्म कर दूंगा, मैं इस आर्टिकल को वेबसाइट पे पोस्ट करूंगा ताकि इस होने के बाद आप इसके हर एक पॉइंट्स पे जाए, दोहराए और आपके जीवन में इसकी आशीषें प्राप्त करें। And once again, the purpose of these preachings I'm doing these past weeks is to make you understand that the Word of God has to be the center of your thought process. कई सप्ताह से मैं इस विषय के बारे में इसके लिए बोलते हुए आ रहा हूं ताकि आपकी सोच विषय की दृष्टिकोण बन जाए परमेश्वर का वचन और आप इससे समझ पाए। You see, Satan is attacking every single couple in the church. शैतान कलीसिया के हर एक दाम्पतिक जीवन बिताने वालों के लिए ऊपर हमला कर रहा है। The best way for a man to lose his calling is for Satan to attack his relationship with his wife. एक शैतान को एक परिवार में कैसा उनके ऊपर हमला कर सकता है, उनके पारिवारिक जीवन पर हमला करते हुए। The whole world is right now suffering because couples have not learned to love each other and stay together. पूरी दुनिया उसमें भुगत रही है क्योंकि एक पति पत्नी या फिर एक पुरुष और स्त्री आपस में कैसे प्रेम कर कर वैवाहिक जीवन बिताना नहीं सीखे। A husband and wife relationship, if it is not correct, it will affect the next generation. एक पति और एक पत्नी का पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं है तो अगले पीढ़ी या फिर बच्चों पर वो भारी पड़ता है। And then that generation will affect the next generation. फिर वो पीढ़ी आने वाली पीढ़ी पर दोष पड़ जाती है। And we are seeing the results of this right now. और इसका परिणाम फल हम देख रहे हैं। So the Lord has put in my heart for the past few months that I need to go back, and the people that join us, we need to make sure their family life, their personal life with their wives and husbands are in the right track. इसके लिए परमेश्वर ने मेरे हृदय में ये सोच दिया ताकि मैं ये सिखा सकूं ताकि पति और पत्नी एक दूसरे में अपने जीवन में एक दूसरे की एक आशीष बन के जी सके। And this teaching is so that you can teach this to every couple you know. और ये आप इसके लिए है ताकि आप हर एक उस दाम्पतिक जीवन बिताने वाले व्यक्तियों से आप सिखा सकते हो। So parents can teach this and speak these promises over their married children. माता पिता
ये सिखा सकते हैं अपने बच्चों के ऊपर जिनकी दाम्पत्य जीवन शुरू हो चुकी है And या बिता children रहे हैं। and children can pray with these verses over their parents. और बच्चे ये अपने माता पिता के ऊपर इस वाणियों को दोहरा सकते हैं। Once we put the word of God as the center of our life and our faith, things will start to change. एक बार यीशु मसीह को अपने जीवन का दृष्टिकोण या फिर जीवन का श्रेष्ठ बना तो आपका जीवन इसी सही मार्ग पर आगे बढ़ता जाएगा। If you don't remember anything else from all of these preachings, remember one thing. आप शायद सब कुछ याद नहीं रख पाओगे, इस पूरे सीखने में से एक बात याद रखो, The word of God is truth and everything else is a lie. परमेश्वर का वचन सच्चा है और बाकी सब झूठा है। Even what you see is not what God has planned if it is against what the word is saying. चाहे आप उसे देखो, लेकिन वो परमेश्वर के वचन के आधार पर हिसाब से नहीं है तो भी वो गलत है। When you understand this, I guarantee you will see God's power in your life and your family. जब आप ये समझोगे तब आपके परमेश्वर की श्रेष्ठता और आशीषें आपके जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में देखोगे। If you want answers, you have to come to Jesus Christ. यदि आपको जवाब चाहिए तो आपको मसीह पर लौट कर आना होगा। If you want solution to your problems, you have to get into the word. यदि आपको हल चाहिए आपकी समस्याओं के लिए तो आपको यीशु मसीह के पास लौट कर आना होगा। Jesus said this very clearly, I am the only way. परमेश्वर यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से कहा है, मैं ही सिर्फ वो मार्ग हूँ, I am the only truth, मैं ही सिर्फ वो सच्चाई हूँ and I am the only life और मैं ही सिर्फ वो जीवन हूँ that will get you connected to become one with God. ताकि आपको उस संबंध में आ सके खरे और सच्चे एक ही परमेश्वर से। Amen. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। धन्यवाद। Praise the Lord.